Yes, good morning class. Okay, so as I told you on Saturday, we'll do the one remaining topic of the chapter number 5, and its new name is Democratic Resurgence. We have done all the new topics of this chapter, but one topic was left, and this is important as we were doing the sample paper. I saw 2 or 3 questions coming from this topic, and many questions you will find are coming from the new chapter. So you will find a lot of topics, lot of questions directly coming from the new topics. Always late, all of you. Okay. Settle down fast. Okay. So that is why I thought let's finish this topic, which is the only topic which is left in the syllabus. Otherwise, I have done all the topics. Now you have to study it on your own also. I told you I have written the notes for this topic. Himanshu, Kulvinder, this you have written? No. You are not following any instructions anyway. I have written it for you, but you can't write it for yourself. Okay. So we'll cover this today. Democratic upsurge. ये इसी के नीचे टॉपिक है, इसी के अंदर डेमोक्रेटिक अपसर्ज. So we will first of all try to understand the meaning of what do we understand by democratic upsurge. जो उसके अंदर कंटेंट है, we will try to understand after that. But first of all, the meaning of upsurge. First of all, I'll just make a diagram. Suppose this is a straight line, and suddenly यहाँ पे increase होता है, suddenly flat चल रहा है, increase होता है, suddenly increase. So ये जो points हैं, these will be called as upsurge बोलेंगे, ठीक है? अब अपसर्ज तो नॉर्मली हो रहा है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक अपसर्ज. So let's see about democratic upsurge. What do we understand by democratic upsurge? Meaning of upsurge is normal चल रहा है when there is a sudden change in the political, economic or social structure of any society. किसी सोसाइटी में सडन चेंज आ रहा है, डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में, इट दैट पार्ट को हम बोलते हैं अपसर्ज. तो डेमोक्रेटिक अपसर्ज. So the meaning of upsurge I have written here. If there is an upsurge in something, if we say there is an upsurge in something, किसी चीज में भी, it means there is a sudden and large increase in it. Sudden and large increase in anything, we can call it. It is a upsurge, and in this case we are talking about something. क्या है यहाँ पे that something? Democracy. Sudden increase and participation of people in the democracy in our country, in our society, where people become aware about their rights in the society. That is we are going to study. ऐसा इंडियन हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे इंडिपेंडेंस के बाद से ऐसा कब कब हुआ है, ठीक है, कि डेमोक्रेटिक अपसर्ज हुआ है. सो देयर आर, याद रखिए, देयर आर टोटल 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब आफ्टर 1947. 3 रिसर्च के बारे में, अपसर्ज के बारे में we are going to study. So clearly you can see, if we are studying about democratic upsurge, meaning is clear everyone, because this is important. पहले meaning पता होगा दे. Then there are three upsurges, ये भी बता दिया. First upsurge जो हुआ था, first democratic upsurge, ये हुआ था just after independence, that is 1950s till 1970s. ऐसे लगा है, ठीक है, तो उसमें all 10 years आते हैं, 50 से 60, 60 से 70. So for these 20 years, we'll study about first democratic upsurge, जिसमें क्या हुआ था, we'll see. Then second democratic upsurge कब होता है? During the period of 1980s. So we'll try and understand what are the incidents which had taken place during this time period. Okay, Pallavi, are you attentive? I think you lost somewhere. Okay. Third democratic upsurge is early 90s. In the beginning of 1990s period, before the disintegration of USSR, वही period है. We see what is the democratic upsurge which Indian society has faced, talking about the democracy. So ये 3 dates are very important. 1 mark questions are coming, 2 mark questions are also coming, and 4 marks are also coming from this topic. In fact, all the additional topics, जैसे अरब स्प्रिंग है, उसमें क्या हो गया था हमारे पीछे सैंपल पेपर में, होल पैसेज बेस्ड क्वेश्चन ही उसके ऊपर आ गया. अगर आपने पढ़ा है, समझे अच्छे से, तो उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, you will be easily able to answer it. तो पढ़ो, पढ़ा हुआ जब एग्जाम में आता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत इजी लगता है. तुम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो. I told you to write the notes, you have come as it is. Okay, so explaining again this democratic upsurge, थोड़ा जो आपके नोट्स में दिया हुआ है. Increasing participation of the people in the democratic politics of country is broadly characterized as democratic upsurge. When the people of a country, the people in the society start participating and showing their representation in the government, in the decision making, and when they are aware about their rights, what are the policies which government should put forward for the people. जब लोगों को participation आ जाता है, उनके अंदर awareness आ जाती है कि हमारी क्या क्या rights हैं इस democratic country में, उसी को क्या बोलते हैं हम? Democratic upsurge. Based on this principle, social scientists have characterized
तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि कब कब लोगों को ज्यादा अवेयरनेस आई है, कब कब दे हैव रेज्ड इश्यूज इन द डेमोक्रेसी, इसके बेसिस पे जो सोशल साइंटिस्ट, हु आर द पीपल सोशल साइंटिस्ट, जो सोसाइटी में चेंजेस को स्टडी करते हैं, अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, तो दैट इज द पीपल जो सोशल साइंटिस्ट कहलाते हैं। तो दीस सोशल साइंटिस्ट ने इस डेमोक्रेटिक अपसर्च को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, सोशल साइंटिस्ट हैव कैरेक्टराइज्ड 3 democratic upsurges in post-independent history of India. But in the post-independent history of India, it means after our independence. तो we are going to now discuss the very first part. इसमें क्या था, यहाँ पर क्यों अपसर्ज होता है, ये देखते हैं। The first democratic upsurge could be attributed from the 1950s से start हो रहा है till 1970s, which was based on the participation of Indian adult voters. इस पीरियड में व्हाट डू वी सी, यहाँ पे हमारा आफ्टर 51 से 52 क्या हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस फॉर लोकसभा। इंडिया में पहली बार इलेक्शंस हुए थे 51 से 52 में। तो इसी पीरियड में हम देखते हैं लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है, स्पेशली अडल्ट वोटर्स। इससे पहले उनको ये राइट नहीं हुआ करती थी अंदर ब्रिटिश रूल, बट एज सून एज वी गॉट द इंडिपेंडेंस, वी हैड एस्टैब्लिश्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी स्टार्टेड विद आवर इलेक्शन सिस्टम। हियर वी सॉ अ ह्यूज पार्टिसिपेशन फ्रॉम द अडल्ट वोटर्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो एक्सपेक्टेड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अडल्ट वोटर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ता है इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, both at the center and the state level. It means for state assemblies also and for central level, that is Lok Sabha elections also, ठीक है। Falsifying the Western myth, अब क्या हुआ जब लोगों ने इतना ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं 1950 to 1970s, this is इसको बोला falsifying the Western myth that the success of democracy requires modernization. वेस्टर्न वर्ल्ड क्या बिलीव करता था कि डेमोक्रेसी उन्हीं कंट्रीज में हो सकती है एस्टैब्लिश वेयर देयर इज मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन लेवल इज हाई एंड एक्सेस टू मीडिया। तो उन्होंने बोला सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वहीं पर हो सकती है जिस कंट्री में ऑलरेडी क्या चीज एस्टैब्लिश हो चुकी है, अच्छी लेवल पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इज देयर, गुड लिटरेसी रेट इज वेरी गुड, मतलब लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा अवेयर हैं, और मॉडर्नाइजेशन बहुत ज्यादा है, और मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, पता नहीं वेस्टर्न वर्ल्ड कौन सा था, वेस्टर्न वर्ल्ड यही सोचता था कि जो कंट्रीज डेवलपिंग है या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है लाइक इंडिया, वहां पे डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है, और स्पेशली इंडिया में जहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, कलर, कास्ट, क्रीड, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो यहाँ पे उन्हें लगता था कि डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है, मतलब यहाँ पे इलेक्शंस इस वे में नहीं हो सकते हैं, जो हमारा क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जहां से हम 18 इयर्स के जो अबव है उनको हम राइट टू वोट देते हैं। तो उनको लगता था यहाँ पे इस टाइप के इलेक्शंस डेमोक्रेसी में बेस पॉसिबल नहीं है। बट इस मिथ को, जो उनका ये सोच थी, इसको गलत ठहराया किसने, इंडिया ने, किसके अंडर, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। हम आज तक भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, स्टिल वी आर हैविंग द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन आवर कंट्री। इलेक्शन कमीशन व्हिच इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी इज कंडक्टिंग द इलेक्शंस सक्सेसफुली एवरी ईयर, एवरी 5 इयर्स, ठीक है। तो इसको हमने क्या लिखा है, falsifying the western myth that the success of democracy requires modernization, urbanization, education and access to media. The successful holding of election to both Lok Sabha and Legislative Assembly all across the states on the principle of parliamentary democracy. तो parliamentary form of government हमारी होती है, इसके basis पे we had elections in the state assemblies also and for central government also. This were the testimony of India's first democratic upsurge. इसी को हमने क्या बोला है, फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। इसमें आप ये तो मेंशन करोगे ही कि क्या था इसमें, पार्टिसिपेशन ऑफ अडल्ट वोटर्स इन आर इलेक्टिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स एट द सेंट्रल लेवल एंड एट द स्टेट लेवल, प्लस विल आल्सो ऐड जो ये लिखा हुआ है falsifying the western myth, मतलब जो सोच थी वेस्टर्न वर्ल्ड की कि इंडिया ऐसी कंट्री में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं हो सकती है, बिकॉज उनको लगता था फॉर डेमोक्रेसी कुछ रिक्वायर्ड चीजें हैं ऑलरेडी जो होनी चाहिए। वो क्या क्या है दृष्टि, क्या क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, व्हाट आर द रिक्वायर्ड थिंग। अगर हम इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, उनके अकॉर्डिंग तो हमारी कंट्री में क्या चीजें प्रिवेल होनी चाहिए ऑलरेडी, लिटरेसी, मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, access to media. So these were the basic important elements जो उन लोगों को लगता था होने चाहिए, जो इंडिया में नहीं थे। हम तो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, we were in इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हम तो बस ग्रो करना सीख रहे थे यहाँ से, बट आते ही हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। इसी को बोला डेमोक्रेटिक अपसर्ज, क्योंकि यहाँ पे लोगों का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ इन इलेक्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट्स
and in a proper manner. ठीक है, तो this was all about first democratic upsurge. इससे कुछ भी आता है, डेट याद रखना 1950 से 1970. यहाँ तक लोगों का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था in the election system of India, both at the central and the state level. Now moving to the second upsurge, democratic upsurge. During 1980s, the increasing political participation of the lower classes of the society, such as SC, ST, and OBCs. When we were studying the second book, most of you, those who are coming, not most of you, 4-5 जो भी आते थे during the period of December, January में जो है, when we were doing the second book, in that we were studying about this moment, that is 1980s का period हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्या देखते हैं, there is a class जिसका participation of suddenly increase होता है, which were not recognized previously in the Indian society, in the Indian election system. वो कौन सी classes थी? Backward classes थी, जो deprived थी, जिनको basic facilities, basic necessities of life were not given to them, and those classes were SC, ST, and OBCs. So here in the second upsurge we see the participation of this community in the Indian political system. So that is why we call it second democratic upsurge. So इसके बाद जो change we see in India's democracy is in the period of 1980s. I am reading it. It's in a very simple language. You can understand. ये second democratic upsurge पढ़ रहा हूँ. During 1980s, the increasing political participation, politics में बहुत ज़्यादा participation आने लगा. कहाँ से? Lower classes से, जिनको पहले recognition नहीं मिलता था. ठीक है, of the society such as SC, ST and OBC ज़्यादा थी, has been interpreted as second democratic upsurge. इनके participation को suddenly जो increase हुआ है Indian political system में, इसको हमने second upsurge बोला है. अब इसके आगे थोड़ी डिटेल देख लीजिए. और ये किसने दिया है? योगेंद्र यादव. याद रखना नेम यहाँ पर. When we talk about a second democratic upsurge, you will mention a name, योगेंद्र यादव. योगेंद्र यादव. ठीक है. Need not to study a lot of detail about him, but there can be a question कि ये जो upsurge है, who has given this data? योगेंद्र यादव. This participation has made Indian politics more accommodative and accessible for these classes. अब उसके आगे वो थोड़ा सा उसका क्लियरिफाई कर रहे हैं. इनका जो पार्टिसिपेशन बढ़ा तो इससे क्या हुआ देखिए. The participation has made Indian politics more accommodative and accessible for these classes. पहले इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था. जब इनको रिकॉग्नाइज किया SC, ST एंड OBCs को, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके लिए प्रोविजंस बने, उसके बाद से हमारी पॉलिटिकल सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज करने लगा है और इनको भी पार्टिसिपेशन मिलने लगा है इन द फॉर्म ऑफ यू हैव सीन रिजर्वेशंस फॉर वुमेन्स, फॉर SC, ST, OBCs. हमारे हर गवर्नमेंट के हर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर जगह जॉब्स में, सेंट्रल जॉब्स में इनके लिए क्या होता है? रिजर्वेशन होता है. इन सेम वे पॉलिटिकल सिस्टम में भी इनके लिए रिजर्वेशन है. कुछ रिजर्व सीट्स होती हैं फ्रॉम वेयर उस सीट में कौन लड़ सकता है. या तो आप कौन सी सीट सुना होगा, इस बार OBC सीट है इस रीजन से, ये SC की सीट है, ST की सीट है, तो दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर कास्ट. तो इस तरीके से इनको रिजर्वेशन दिया जाता है कि जिस वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है इनको क्या मिले? रिप्रेजेंटेशन मिले. मान लीजिए इस एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, पर यहाँ पे बहुत बड़ा एक एरिया रहता है जो पीपल कौन सी कम्युनिटी है? SC कम्युनिटी है, मान लो जंगल के रीजन में, तो इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है. कोई भी जनरल का जो हमारा एक कैंडिडेट होता है, इफ ही विंस द इलेक्शन, ही विल वर्क फॉर ओनली द पॉपुलेशन जो जनरल है या जो उसके एरिया में, ही विल इग्नोर दिस पॉपुलेशन, जो हमेशा से इंडिया में होता जा रहा था. नाउ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज डन, इस एरिया की सीट किसको दे दी है कि यहाँ से जो इस बार इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, वो सीट किसकी है? बस ST की है. तो जब ST बनेगा वो इधर का तो डेवलपमेंट देखेगा, प्लस बेसिकली जो उसकी कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स है वो उसको भी सही करेगा. दैट इज व्हाई इनकी सीट्स को क्या किया है? किसी किसी एरिया में रिजर्व किया है. यहाँ से कोई जनरल या SC या कोई और कम्युनिटी का पर्सन कैंडिडेट यहाँ से कंटेस्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकता है. दिस सीट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर ST, क्योंकि जो उसकी प्रॉब्लम्स है, जो उसकी कम्युनिटी की प्रॉब्लम है, उससे अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता है. ठीक है, दिस इज द रीजन दे हैव रिजर्व्ड दिस सीट. तो यहाँ पे ऐसा होने लगा तो इनका पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा. This participation has made Indian politics more accommodative, accessible for these classes. Although this upsurge has not made any major change in the standard of living of these classes, although this upsurge has not made any major changes in the standard of these classes, especially Dalits, the participation of these classes into the organizational and political platform gave them the opportunity to strengthen their self-respect. अब ये कह रहे हैं, okay, we have given the opportunity to them to participate in the political system of India. इससे अभी भी इनका जो लाइफस्टाइल था, जो इनकी क्वालिटी थी लाइफ की, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आया है. पर पहले क्या था, ये पूरी तरीके से इग्नोर्ड थे. बट एटलीस्ट नाउ दे आर नॉट इग्नोर्ड. इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इनकी भी कोई डिग्निटी है.
they are participating in the Indian politics slowly and gradually they are also improving their social status, जो कि पहले बिल्कुल ही क्या था, इग्नोर था, इनको रिप्रेजेंटेशन मिलता ही नहीं था। तो इस सेकंड रिप्रेजेंटेशन के बाद ये अपसर्च के बाद ये बोल सकते हैं इनको अकोमोडेट किया है अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, इनको भी एडजस्ट किया हमने, इनको एक रिकॉग्निशन मिला, एक आइडेंटिटी मिली है थ्रू सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्च। पहले इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। अब ये नहीं कहेंगे कि इसके होते ही इनका लाइफस्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, बट उसमें इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं स्लो एंड ग्रेजुअल। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज इनको एक आइडेंटिटी मिली है, इनको हम रिकॉग्नाइज करने लगे हैं। कौन सी क्लासेस को? बैकवर्ड क्लासेस को। सिस्टम समझ भी आ रहा है बस गर्दन, ठीक है। इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी हैं, स्ट्रेंथ हो गई, इनकी पावर बढ़ गई है थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड अपसर्च। इसमें किसी को एनी क्वेश्चन? इन द सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्च ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1980s, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है 80s में किसका पार्टिसिपेशन बढ़ा? एससी, एसटी एंड ओबीसी, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिला, इनको आइडेंटिटी मिली, उनके लाइफस्टाइल में इतना चेंज तो नहीं आया, एटलीस्ट नाउ दे हैव द अपॉर्चुनिटीज जो अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए दे कैन स्टैंड, दे नो देयर राइट्स, उनमें अवेयरनेस आ गई है, पॉलिटिकल सिस्टम में उनको स्पेस मिल गया है। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू मेंशन इन द सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। इसमें क्या होगा? अपसर्ज मतलब किन में चेंजेस आए? ये एकदम बॉटम पे थे, अब इन्हें अपसर्ज आया है, इन्हें अपनी क्या पावर का पता चला है, अवेयरनेस आई है, अपनी राइट्स के बारे में पता है, दे नो इफ दे आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल्दो वो बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं, बट उनका भी कुछ राइट बनता है इन द पॉलिटिकल सिस्टम, उनकी रिजर्व सीट्स होती हैं जिसके थ्रू वो अपना डेवलपमेंट खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे? अपसर्ज। पहले वो एकदम बेस लेवल पे थे, सडनली उनके अंदर अवेयरनेस आई, नहीं हमें राइट्स मिलने चाहिए इंडिया में, तो जो इनका पार्टिसिपेशन 80s के पीरियड में आया है उसको बोल दिया हमने सेकंड अपसर्ज। ये किसके अकॉर्डिंग है? योगेंद्र यादव, ठीक है। नाउ थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, द एरा ऑफ, अब ये तो इजी होगा, 91 में क्या हो गया था हमारा? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी, तो ये स्टार्ट हो गया था कब से? 1990s का पीरियड बोल रहे हैं, मतलब इन 10 इयर्स की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर ईयर की बात किसी में भी नहीं हो रही है, क्योंकि कोई अपसर्ज आता है तो एक ही दिन में नहीं आ जाता है, कोई मूवमेंट चल रहा है, कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर लोगों का पार्टिसिपेशन आ रहा है इन द पॉलिटिकल सिस्टम तो एक दिन का नहीं होता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तभी यहाँ पे लिखा है 50s से 70s 80s, मतलब 10 इयर्स। यहाँ पे क्या लिखा है? 90s से स्टार्ट हो गया था, अर्ली 90s से शुरू हो गया था, और 91 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई थी। तो 90s में क्या हुआ है? आप लोग को ये आना इजी होगा आपके लिए, द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको शॉर्ट में एलपीजी भी आ सकता है, क्या एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर था, ठीक है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर ये तीनों चीजें हुई थी। From the early 1990s is attributed to the emergence of a competitive market society. इन्होंने ये बोला है when we adopted this liberalization, privatization, globalization, यहाँ से ही हमारा क्या हुआ? ऐसा मार्केट बना है कॉम्पिटिटिव मार्केट, क्योंकि इससे पहले क्या था? जो रिसोर्सेज पे और जो स्टेट पे और जो ग्लोबलाइजेशन तो आया ही नहीं था, तो इन चीजों पे किसका कंट्रोल हुआ करता था? गवर्नमेंट। देयर वर बैरियर्स, गवर्नमेंट का कंट्रोल था, ठीक है। अब इनसे क्या कर दिया? फ्री कर दिया। अब मार्केट कैसा हो गया? फ्री। जो रिस्ट्रिक्शंस होते गवर्नमेंट की वो हटा दिए और मार्केट कैसा कर दिया हमारा? ओपन मार्केट, वेयर वी ऑप्टेड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तभी यहां पे लिखा है, देखिए, it attributed to the emergence of competitive market society encompassing all the important sectors of economy, society, polity and paving way for the third democratic upsurge. ऐसे ही ये पीरियड शुरू होता है जिसको हम बोलते हैं थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज, जिसमें जो चेंज आता है, लोगों का पार्टिसिपेशन आता है। एक जो ये ग्राफ था, ग्राफ में फिर से एक हाई पॉइंट आता है, तो हाई पॉइंट किसके जैसा आता है? लोगों का पार्टिसिपेशन किसमें बढ़ जाता है? मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ से जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो स्टेट के अंदर चीजें कंट्रोल में रहा करती थी, वो रिस्ट्रिक्शंस स्टेट ने हटा दिए, एंड दिस मार्केट वाज फ्री एंड कॉम्पिटिटिव। जब मार्केट फ्री हो जाता है तो लोगों में क्या शुरू हो जाता है? कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है, ठीक है। The third democratic upsurge represents a competitive electoral market which is based not on the principle of survival of the best but rather the survival of the ablest. हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, ये चीजें याद रखना, क्वेश्चंस में आएगा। थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है, it is based not on the principle of
सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट बट ऑन द सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट। ये बोल रहे हैं जो बेस्ट होगा वही सर्वाइव नहीं करेगा मार्केट में। जब ये हो जाता है 1990s में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ जाता है हमारी सोसाइटी में, पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिक सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं, तभी हम इसको अपसर्ज बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं अब मार्केट में बस जो बेस्ट है वो सर्वाइव नहीं करेगा, बस जो एबलेस्ट है, जो बेस्ट कर सकता है, जिसमें कोई भी क्वालिटीज है वो सर्वाइव कर सकता है। पहले होता था ना बायोलॉजी में आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट, अब ऐसा नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट होगा। ठीक है, ये बोला इसमें। इट अंडरलाइंस द थ्री शिफ्ट्स इन इंडियन इलेक्टोरल मार्केट। तो जब ये आता है थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज होता है तो मार्केट में हम तीन टाइप के चेंजेस देखेंगे, उनको याद रखना। तीन चेंजेस कौन से हैं? दोस फर्स्ट चेंजेस वर फ्रॉम स्टेट टू मार्केट। मार्केट में क्या चेंज हुआ है? पहले जो स्टेट के अंदर चीजें होती थी, नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन जो स्टेट के होते थे मार्केट में, व्हिच वर टू बी फॉलोड, नाउ दोस हैव चेंज एंड ट्रांसफर टू मार्केट। अब सारी चीजें कौन रन कर रहा है? मार्केट को ओपन कर दिया है, अब उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब क्या बोल रहे हैं, मार्केट में जो एक्टिविटीज हो रही है वो स्टेट से शिफ्ट किसके पास कर दी है? मार्केट। मार्केट अपने आप को अपने आप से गवर्न कर रहा है टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। एक शिफ्ट तो ये हो गया स्टेट टू मार्केट। देन गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। पहले क्या होती थी, गवर्नमेंट चीजों को रिस्ट्रिक्ट करती थी, रोकती थी, मार्केट में कितना फ्लो होना चाहिए इनकम का, इन सब चीज को मॉनिटर कौन करता था? गवर्नमेंट मॉनिटर करती थी। बट अब किस पे आ गई है गवर्नमेंट? अब गवर्नमेंट गवर्नेंस पे आ गई है। अब गवर्नमेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज लाएगी, वो प्रमोट कर रही है कि इकोनॉमिक ग्रो कैसे होगी। हमारा ओपन मार्केट है तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज व्हिच इट शुड गो टू द पीपल। पीपल को कौन कौन सी एक्टिविटीज और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ताकि इकोनॉमी ग्रो हो। तो गवर्नमेंट जो पहले गवर्नमेंट थी, रूल्स बनाती थी, वो क्या कर रही है? गवर्नेंस। ठीक है, मोटिवेट कर रही है। And third is state as controller to state as facilitator। ये तो क्लियर पता चल रहा। स्टेट पहले क्या करती थी? इकोनॉमी को, मार्केट को कंट्रोल करती थी। बट ये थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो 1990s में होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसके बाद स्टेट कैसा एक रोल चेंज हो गया, स्टेट का, गवर्नमेंट का रोल क्या बन गया? फैसिलिटेटर। पहले कंट्रोलर थी, कंट्रोल करती थी एक्टिविटीज को और इकोनॉमी को कंट्रोल करती थी, मार्केट को कंट्रोल करती थी थ्रू वेरियस नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन। अब वो क्या कर रही है? फैसिलिटेटर। उनको प्रमोट कर रही है, एक्टिविटीज को प्रमोट कर रही है, लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज दे रही है। कोई अगर कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसको लोन्स दे रही है। इस टाइप का क्या है? स्टेप्स ले रही है वेयर इट इज प्रमोटिंग पीपल टू गो टू द मार्केट एंड वहां पे भी अपना करियर बना सकते हैं लोग, तो और इकोनॉमी तो ग्रो होगी कंट्री की। तो पहले मार्केट वाज अ कंट्रोलर, अब क्या बन गया वो? एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, तो तीन चेंजेस कौन कौन से हो गए हमारे मानसू? ओपन मार्केट हो गया, नए चेंजेस। जब ये हुआ डेमोक्रेटिक अपसर्ज होता है 1990s में, ठीक है, तो हम तीन टाइप के चेंज शिफ्ट देखते हैं हमारी मार्केट में। एक है स्टेट टू मार्केट, देन गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, एंड द थर्ड इज स्टेट एज कंट्रोलर टू स्टेट एज फैसिलिटेटर, फैसिलिटीज देने वाला। पहले फैसिलिटी नहीं, पहले रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, अब हमारा स्टेट गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रहा है, फैसिलिटीज दे रहा है, इट इज गिविंग अपॉर्चुनिटीज ताकि लोग ग्रो करें। ठीक है, और स्पेशली इसमें यूथ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूथ को पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी बहुत सारी पॉलिसीज, स्कीम्स निकाल रहे हैं। ठीक है, मोरओवर द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज सीक्स टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ। ये याद रखेंगे, थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है इसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं थ्रू दिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और तीन चेंजेस जो हम इकोनॉमी में देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि जो हमारा यूथ है कंट्री का, उसका पार्टिसिपेशन मार्केट में बढ़े। ठीक है, participation of the youth would constitute a significant chunk of Indian society and help emerge the real game changers। तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जैसे हम इंडिया को किसमें बढ़ रहे हैं? न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में भी बढ़ रहे हैं ना, तो हमें अगर अपनी इकोनॉमी को बहुत इंक्रीज करना है तो यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूथ ही वो चीज है जो रियल गेम चेंजर्स, क्रिकेट में होता है ना गेम चेंजर्स, जो सडनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर देता है, तो हमारे इंडियन सोसाइटी में हम कहते हैं यूथ ही वो चीज है विच कैन बी अ रियल गेम चेंजर फॉर इंडिया। इंडिया में न्यू सेंटर ऑफ पावर आज बन रहा है, तो उसमें यूथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, स्पेशली इन द मार्केट सेक्टर। तो उसको प्रमोट किया जा रहा है, तभी यूज कर रहे हैं मार्केट एज अ फैसिलिटेटर। In viewing their increasing electoral preferences for both development and governance in India contemporary democratic politics. So this was all about these three democratic upsurges. Now you will read it, you will find question related to this question, read the answers from those particular questions, तो ये समझ आ जाएगा। ठीक है, this was from the chapter 5, previous name इसका कुछ और था, as I told you ये name change हुआ है, democratic research। This is the chapter from your second book, B part का है। This topic was left, और तो I think कोई भी टॉपिक आपका बचा नहीं है।
एक बार चेक कर लेना, if any topic is left let me know, I will explain it, but मेरे अकॉर्डिंग I think this was the only topic which was left। और इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एडिशनल से बहुत ज्यादा आ रहा है।